आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। डिफिशिएंट डिमांड इज ए सिचुएशन where aggregate demand falls to aggregate supply corresponding to full employment level of employment. This can be understood with the help of this diagram. As I have explained earlier that AD is less than aggregate supply corresponding to full employment situation. This is the aggregate demand and this 45-degree line is aggregate supply. Point E is full employment situation equal to EM या equal to OM level of output. This is the full employment situation because AD is equal to AS. Further, when plant level of aggregate demand falls to aggregate demand equal to AD1, this is the actual demand. Means जब aggregate demand actually falls करती है plant level of demand से जो AD1 के बराबर होती है, this is situation called deficient demand या deflationary gap corresponding to full employment. You can calculate it. This point is the full employment situation at AD is equal to AS, but point EF is the deficient demand situation. You can calculate is EM minus FM equal to EF is a situation of deflationary gap. Why it is? Because actual demand is less than plant level of demand corresponding to full employment situation. अभी हम पढ़ेंगे इसके कॉजेस क्या होते हैं, ये देखेंगे। इसके पहले हम कॉजेस के पहले भी देख सकते हैं कि दिस सिचुएशन E1 इज आल्सो अ इक्विलिब्रियम सिचुएशन वेयर AD is equal to AS, but this is under employment of resources corresponding to point E. Point E is a full employment situation where AD is equal to AS. E1 point is also where AD is equal to AS, but this is under employment of resources. How much? MM1 equal to MM1 is under employment resources. This point E1. अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके कॉजेस क्या हैं। यू कैन सी द कॉजेस। क्यों ऐसा होता है? जब इकॉनमी में मनी सप्लाई या मनी सर्कुलेशन कम होता है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड फॉल्स होती है और डिफिशिएंट डिमांड सिचुएशन क्रिएट होती है। कैसे? यहाँ देख सकते हैं, फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C, फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I, एंड फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G, एंड also export. These are the sectors demands. When there is fall in consumption of all the three sectors as well as export, there will be less money supply in the market, resulted deficient demand. और फैक्टर इसके हैं, and rise in taxes. If government increases taxes and import power increases, because of it the further money from the public या market goes to government or other countries. That leads shortage of money in the market, resulted deficient demand situation. हम इसके आगे अब देखेंगे इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। आउटपुट डिक्रीज, एज डिमांड इज लेस देन supply, aggregate demand is less than supply, there will be accumulation of stock to the producer. So producer will invest less. When he will invest या producer invest less, output will decrease. तो पहला इम्पैक्ट क्या होगा? आउटपुट डिक्रीज होगा। दूसरा इम्पैक्ट देखते हैं, इंक्रीज इन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एज ऑलरेडी डिफिशिएंट सिचुएशन in the economy, demand is less, output is decreasing, then there will be involuntary unemployment will increase. Means
अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा डिमांड फॉल्स कर रहा है। थर्ड पॉइंट देखें, इसका इम्पैक्ट क्या है? प्राइस लेवल। एज आउटपुट डिक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, रिजल्टेड decrease in price level as demand will be less. So these are the three important impacts of the deficient demand situation. Now what are the measures to correct it? You can see कैसे डिफिशियंट डिमांड सिचुएशन या डिफ्लेशनरी गैप को हम करेक्ट करते हैं। इसके लिए मीजर्स दिए गए हैं, देख सकते हैं। एक है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में आपने पढ़ लिया है मीजर्स टू करेक्ट डिफिशियंट डिमांड सिचुएशन या डिफ्लेशनरी गैप, टैक्सेसेस या गवर्नमेंट टैक्स है, और दूसरा है एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग। तो फिस्कल डिमांड पॉलिसी के अंतर्गत डिफिशियंट डिमांड को ख़त्म करने के लिए या उसको चेक करने के लिए सरकार क्या करती है? रिड्यूसेस टैक्सेस, टैक्स को घटाएगी, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और डिमांड इंक्रीज होगी, जिसके वजह से डिफिशियंट डिमांड सिचुएशन करेक्ट होगी। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट विल इंक्रीज मनी इन द मार्केट। हाउ स्पेंडिंग विल इंक्रीज? सेवरल टाइप एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ इट देयर विल बी मनी इंजेक्शन इन द मार्केट that increases the purchasing power of the public, and this result correction in the deficient demand in the market. This is the fiscal policy of central government. दूसरी पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई। आरबीआई के जो टूल्स हैं या उसके इंस्ट्रूमेंट हैं वो दो तरह के हैं, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आपने पढ़ लिया है, जैसे बैंक रेट है, LRR जिसको CRR SLR के नाम से जानते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये उसके क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आते हैं। अगर डिफिशियंट डिमांड है तो आरबीआई क्या करेगी? बैंक रेट डिक्रीज करेगी। बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर सभी कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। जब आरबीआई बैंक रेट डिक्रीज करेगी तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई से ऋण लेना सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी सस्ते में ऋण ऑफर करेंगे। इसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन बैंक ज़्यादा कर सकेंगे और लोगों के पास में परचेजिंग पावर बढ़ेगी और वो डिमांड इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से डिफिशियंट डिमांड करेक्ट होगी। ठीक इसी तरह से LRR है, द गवर्नमेंट आरबीआई विल आल्सो डिक्रीज द LRR, दैट लीड्स टू मनी इंजेक्शन इन द मार्केट। थर्ड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो डिफिशियंट डिमांड सिचुएशन में क्या करती है आरबीआई? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करती है। पब्लिक या जो कमर्शियल बैंक हैं उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करेगी। तो परचेज करने से क्या होगा? परचेज करने से जो लोग इसको जो है लोगों के पास में जो सिक्योरिटीज़ है गवर्नमेंट आरबीआई उसको परचेज करेगी, तो मनी जो है इनफ्लो होगा मार्केट में, जिसके वजह से डिमांड क्रिएट होगी और डिफिशियंट डिमांड सिचुएशन करेक्ट होगी। इसका जो दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर्स में आप देख सकते हैं डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, दिस इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन एंड अगेंस्ट द सिक्योरिटीज। इसमें क्या होगा? इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसमें डिक्रीज करते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज होने से कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता है, जिससे डिफिशियंट डिमांड को करेक्ट करने में मदद मिलती है। दूसरा इसका दिया गया है लेंडिंग। आरबीआई आल्सो इनकरेज कमर्शियल बैंक टू लेंड मोर। इसके जब लोन क्रिएशन ज़्यादा करने के लिए आरबीआई कहेगा तो जाहिर सी बात है फर्दर मनी सर्कुलेशन मार्केट में होगा, जिससे डिफिशियंट डिमांड सिचुएशन करेक्ट होगी। एक और पॉइंट होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट रेशनिंग, जो आरबीआई के द्वारा समय समय पर की जाती है, उसको विथड्रॉल की जाती है। आरबीआई जो है जो क्रेडिट से संबंधित जो रेशनिंग है, जो लिमिटेशंस है, उसको हटा देती है, जिससे क्रेडिट क्रिएशन और हो जाता है। इस तरह से मनी मार्केट में जो डिफिशियंट डिमांड की सिचुएशन है उसको करेक्ट कर लिया जाता है।
अब हम इसको क्विक समराइज करेंगे। देख सकते हैं डिफिशिएंट डिमांड क्या है। सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी, दिस इज कॉल्ड डिफिशिएंट डिमांड। And the gap between actual demand and the planned demand is called as deflationary gap situation. You can see the diagram. This is the planned level of aggregate demand, and this is the aggregate supply. This is the full employment situation. When demand is falls to AD1, this is the actual demand curve, and this is the difference between actual demand and planned level of demand is called deflationary gap situation. ठीक है, how much it is, you can see corresponding to this is the EG is the deficient demand situation and deflationary gap. Now main causes of the deficient demand: decrease in consumption, increase in taxes, okay, decrease in government expenditure, here fall in investment expenditure, rise in import, fall in export. These are the reason for deficient demand situation. Impact आपने देख लिया था, output will decrease, unemployment will increase या involuntary unemployment बढ़ेगा, जनरल प्राइस लेवल फॉल होगा। इसको करेक्ट करने के लिए क्या है, मेजर्स दिए गए हैं, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट विल डिक्रीज द टैक्सेस, इंक्रीज द स्पेंडिंग। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई जो है बैंक रेट डिक्रीज करेगी, परचेज इट्स सिक्योरिटीज़ एलआरआर डिक्रीज करेगी, जिससे फर्दर मनी सर्कुलेशन इंक्रीज होगा मार्केट में और डिफिशिएंट डिमांड करेक्ट होगा। क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस में मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज करेगी, लेंडिंग कैपेसिटी जो है कमर्शियल बैंक इंक्रीज करेगी, जिससे ज़्यादा लोन क्रिएट होगा और मनी सर्कुलेशन होने से डिमांड इंक्रीज होगी और ये डिफिशिएंट डिमांड सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। एडवाइस टू इनकरेज लेंडिंग, कमर्शियल बैंक को आरबीआई इंकरेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन क्रिएट करें ताकि डिफिशिएंट डिमांड को करेक्ट किया जा सके। आरबीआई आल्सो विथड्रॉ द क्रेडिट रेशनिंग अंडर, जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है उसके अंदर जो आरबीआई है उसको विथड्रॉल करती है ताकि क्रेडिट क्रिएशन को और आसान बनाया जा सके। देख सकते हैं इसको किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन होता है और डिफिशिएंट डिमांड करेक्ट होती है। दिस इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, CRR, SLR, reverse repo rate. These are to decrease to create credit more. Then imposing margin requirement, this will be decreased. Okay, selective credit control to be withdrawn by the RBI to make credit creation easy. Hope you are able to get the point.